नाज़नादा बुलेटिन के साथ मैं हूं हिना जुबैर। सबसे पहले हेडलाइंस। 16वीं लोकसभा के पहले इजलास का आज दूसरा दिन 9 मुंतखब अरकान लेंगे हलफ। मेघालय में खातून की बेरहमाना कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों के खिलाफ एनकाउंटर, मेघालय पुलिस का बयान। मोदी ने अमेरिका की दावत की कबूल, सितंबर में कर सकते हैं ओबामा से मुलाकात। पुणे में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल के कत्ल का मामला, हिंदू राष्ट्रीय सेना के सदस्य समेत 20 अरकान गिरफ्तार। दुनिया भर में आज मनाया जा रहा है यौम माहौलियात। मुख्तलिफ मुकामात पर माहौलियाती तवाज़ुन के तई बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। और शाम में बशार अल असद को मिली जबरदस्त कामयाबी, आइंदा 7 वर्षों के लिए एक मरतबा फिर हुए सदर मुंतखब। नाज़रीन, हम आपको बताएं कि 16वीं लोकसभा के पहले इजलास का आज दूसरा दिन है। हम आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा। Honorable Speaker had received 2 letters dated 26th May 2014 from Sarv Shri Mulayam Singh Yadav, Shri K. Chandrasekhar Rao, and 1 letter dated 29th May from Shri Narendra Modi, elected as members from Mainpuri, Medak and Vadodara parliamentary constituencies of Uttar Pradesh, Telangana and Gujarat. The members, via these letters, tendered their resignation from the aforementioned parliamentary constituency. The Speaker accepted their resignations with effect from 29th May 2014. Honourable members, the names of members will now be called for the purpose of making and subscribing an oath or affirmation. And I hope members will remember their oath and affirmation in the next 5 years for the smooth running of the House. The Prime Minister will be called first, thereafter Shri L.K. Advani, and thereafter Srimati Sonia Gandhi will be called, followed by the members of the panel of chairmen, Ministers of Cabinet rank and Ministers of State. Thereafter, the names of other members will be called, State, Union Territory wise, beginning with Andaman and Nicobar Islands, Andhra Pradesh and so on. Insofar as Andhra Pradesh is concerned, you are well aware that the state of Telangana has now come into existence with effect from 2nd June 2014. Consequently, out of 42 parliamentary constituencies in the state of Andhra Pradesh, 17 constituencies now come under the state of Telangana. As I am calling names of members for taking oath or making affirmation state-wise, the names of the members from the state of Telangana will be called at the appropriate stage when the turn of the state of Telangana will come. The names of members who are not able to take the oath or make the affirmation at the first call will be called again at the end. If the name of any member is not pronounced correctly, it may kindly be excused. Now, Shri Narendra Damodar Das Modi. मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा।
Shri L.K. Advani. मैं लाल कृष्ण आडवाणी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। Srimati Sonia Gandhi. मैं सोनिया गांधी जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। Now I request the Secretary General to call the names. Shri Arjun Sharan Sethi. I, Arjun Charan Sethi, having been elected a member of the House of People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I will about to enter.
श्री पूर्णो अधिको सांगमा। I, Purno Agadok Sangma, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री वीरेंद्र सिंह एंगती। I, Shri Birendra Singh Inti, having been elected a member of the House of the People, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. श्री राजनाथ सिंह। मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्रीमती सुषमा स्वराज। अहं सुषमा स्वराजः लोकसभाया सदस्यत्वेन निर्वाचितः। निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यद् अहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यद् अहं भारतस्य सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नताम् अखण्डतां च रक्षिष्यामि तथा यत् पदं ग्रहीतुम् अहम् उद्यतो अस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि।
नितिन जयराम गडकरी। मैं नितिन जयराम गडकरी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री डी.वी. सदानंद गौड़ा। ಡಿ.ವಿ. ಸದಾನಂದಗೌಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಚುನಾಯಿತನಾದವನಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ದೇವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. सुश्री उमा भारती। अहम उमा भारती लोकसभायाः सदस्यत्वेन निर्वाचितः निश्चयेन परमेश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। यदहं भारतस्य संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नताम् अखंडतां च रक्षयिष्यामि तथा यत्तदं गृहीतुमह मुद्योतस्मि तस्य कर्तव्यानि श्रद्धापूर्वक निर्वक्ष्यामि। श्री रामविलास पासवान। मैं रामविलास पासवान जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री कलराज मिश्र। तो 16वीं लोकसभा के पहले इजलास का आज दूसरा दिन है और आज से बाकायदा 16वीं लोकसभा के
कामकाज का आगाज हो गया। आज लोकसभा के 9 मुंतखब अरकान को हलफ दिलाया जा रहा है और प्रोटेम स्पीकर कमलनाथ ये हलफ दिला रहे हैं। सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को हलफ दिलाया गया, उसके बाद बीजेपी के सीनियर लीडर एल.के. आडवाणी और उसके बाद कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और फिर दूसरे वुज़रा को ये हलफ दिलाया जा रहा है। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। मेघालय पुलिस का कहना है कि कल मेघालय में खातून की बेईमाना कत्ल में मुलविस मिलिटेंटों के खिलाफ इनकाउंटर चल रहा है। मेघालय के डीजीपी के मुताबिक इनकाउंटर आज सुबह शुरू हुआ है। बताया जाता है कि 2 रोज पहले 2 रामा रेंज के करीब मिलिटेंटों के कैंप का पता लगा था और उन्हीं लोगों ने कल इस बेईमाना जुर्म को अंजाम दिया। वाज़ेह है कि कल मिलिटेंटों ने घर में घुसकर एक खातून की इस्मत तार करने की कोशिश की, जिसकी खातून ने सख्त मुजाहमत की थी। इसके बाद मुसल्लह मिलिटेंटों ने खातून को मारा पीटा, मगर उसकी मुजाहमत जारी रही और मजमूम अज़ाइम पूरा न होता देखकर मिलिटेंटों ने खातून को इंतहाई करीब से उसके सर में गोली मार दी। इस वाक़े ने पूरे मुल्क को शर्मसार कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और अमेरिकी सदर बराक ओबामा की आइंदा सितंबर में मुलाकात मुतवक्किह है। बताया जाता है कि दोनों लीडर बाहमी उमूर पर बातचीत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली के इजलास में शिरकत करने का फैसला किया है और इसी मौके से नरेंद्र मोदी अमेरिका के सदर बराक ओबामा से भी मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक की जानिब से इस मुलाकात की तारीख और वक्त को हतमी शक्ल अता की जा रही है। इससे पहले इंतखाबात में मोदी की शानदार कामयाबी के बाद ओबामा ने मोदी को फोन पर मुबारकबाद दी थी और अमेरिका आने की दावत भी दी थी। काबिल गौर है कि मोदी के इक़्तिदार में आने से पहले नरेंद्र मोदी को वीजा दिए जाने से अमेरिका इनकार करता रहा था, लिहाजा इस दौरे की अहमियत मजीद बढ़ जाती है। पुणे में सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल शेख मोहसिन सादिक कत्ल केस में पुलिस ने एक हिंदू तंजीम से वाबस्ता 20 अरकान को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार शुदगान का ताल्लुक हिंदू राष्ट्र सेना से है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हिंदू राष्ट्र सेना के सदर धनंजय देसाई को गिरफ्तार करने का दावा किया है। गिरफ्तार 13 अफराद पर कत्ल का केस दर्ज किया गया है, जबकि दीगर के खिलाफ इक़दाम कत्ल और बलवा करने के मामले दर्ज किए गए हैं। पुलिस ने केस क्राइम ब्रांच को रेफर कर दिया है और मकामी अफराद से अमन अमान बनाए रखने की अपील भी की जा रही है। ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने नौजवान का कत्ल करने के बाद एक SMS किया, जिसमें मुलजिम ने लिखा, द फर्स्ट विकेट हैज फॉलन। महलूक सादिक शोलापुर का रहने वाला था और वो हादापुर का मकी था। पीर की रात हुए इस वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी पाई जा रही है। सादिक के कत्ल को सोशल नेटवर्किंग साइट पर शिवाजी और बाल ठाकरे की काबिल एतराज तस्वीर अपलोड करने से जोड़कर देखा जा रहा है। वाज़ेह है कि पुलिस की तफ्तीश में बात सामने आई है कि इन मुतनाज़ तस्वीर को फेसबुक पर अपलोड करने वाले का नाम निखिल तिखोने है, जिसने निहाल खान के फर्जी नाम से फेसबुक अकाउंट खोल रखा था। दुनिया भर में आज यौम माहौलियात मनाया जा रहा है। आज के दिन दुनिया भर में लोगों को माहौलियात के तई बेदार करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, ताकि लोगों में बेदारी आए और हम आलूदगी से पाक माहौल में सांस ले सकें। ETV भी चाहेगा कि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के तई लोगों में बेदारी पैदा हो, ताकि हम आने वाली नस्लों को आलूदगी से पाक माहौल मुहैया करा सकें। माहौलियाती आलूदगी इन दिनों सबके लिए फिक्र का बाइस बनी हुई है, क्योंकि ये सीधे तौर पर इंसान और हर जानदार के वजूद से जुड़ी हुई है। हालात रोज बरोज तब्दील होते जा रहे हैं। पीने के लिए पानी नहीं है, जो है वो इतना आलूदा है कि कई बीमारियां अपने अंदर समाये हुए है। फजाई आलूदगी में भी दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। दर्जा हरारत में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है। पेड़ पौधे लगातार कटते जा रहे हैं। पानी का लेवल कम होता जा रहा है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक सभी इन परेशानियों से दो चार हैं। बदलते माहौल में इन सभी चीजों का इस्तेमाल जरूरी है, लेकिन कुछ फायदे के लिए माहौलियात को तेजी से नुकसान पहुंचाया जा रहा है और ये आने वाली नस्लों के लिए किसी अजाब से कम नहीं होगा। पर्यावरण का जो बिगाड़ है वो प्रत्येक नागरिक थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। ये कोई एक संस्था या एक ऑर्गेनाइजेशन इसको नहीं बिगाड़ता। प्रत्येक मानव का थोड़ा न थोड़ा योगदान इसमें पर्यावरण के बिगाड़ में रहता है। तो जाहिर है कि जब
प्रत्येक व्यक्ति बिगाड़ता है तो प्रत्येक व्यक्ति ही इसको संभाल सकता है। तो इसलिए इसमें प्रत्येक नागरिक की, विश्व के प्रत्येक नागरिक की इसमें भागीदारी पर्यावरण संरक्षण में जरूरी है। पर्यावरण बढ़ती जनसंख्या की वजह से या औद्योगिकरण की वजह से या फिर बढ़ते मोटर व्हीकल्स की वजह से या कई रीजंस हैं जो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। उसका संरक्षण कैसे किया जाए, उसको इम्प्रूव कैसे किया जाए, इसके बारे में कम से कम एक दिन लोगों के बारे में जागरूकता पैदा की जाए और उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि पर्यावरण किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंधित नहीं है, किसी एक विभाग से संबंधित नहीं है, किसी राष्ट्र से संबंधित नहीं है, ये हम सबकी समस्या है। जिस कुदरत ने इंसान को जिंदगी दी, इंसान ने उसी कुदरत को इतना नुकसान पहुंचाया कि अब आबो हवा और पानी इंसान के रहने लायक नहीं रहे। प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, आंकड़े लगातार चहता रहे हैं, लेकिन इंसान है कि अभी संभल ही नहीं रहा। माहौलियात में आ रही तब्दीली को देखते हुए ही आलमी यौम माहौलियात की शुरुआत की गई, लेकिन ये भी सिर्फ एक दिन में ही सिमट कर रह गया है। आज के दिन स्कूलों में रैलियां निकाली जाती हैं, तकरीरी मुकाबलों का इनेकाद किया जाता है, तो कहीं पेंटिंग मुकाबले कराए जाते हैं तो कहीं कॉन्फ्रेंस, और अगले ही दिन सब कुछ भुला दिया जाता है। माहौलियात के लिए काम करने वालों का मानना है कि आवाम को जब तक पूरी तरह से बेदार नहीं किया जाएगा तब तक किसी अच्छे नताइज की उम्मीद नहीं की जा सकती। ग्रीन हाउस गैसेज या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने का मकसद सिर्फ पर्यावरण से नहीं जुड़ा है। यहाँ पर सवाल इंसान के खुद के वजूद का है। अगर हर आम आदमी पर्यावरण के संरक्षण के लिए आगे आएगा तो शायद प्रभावी रूप से पर्यावरण को बचाया जा सकेगा। आम इंसान मिलकर के अगर प्रयास करेंगे तो बहुत ही बड़े स्तर पर प्रयास हो सकेंगे। हर इंसान खुद के लिए एक पेड़ लगाए और आगे बढ़कर के ये कोशिश करे कि कम से कम प्रदूषण फैलाए तो शायद हालातों को बहुत जल्दी काबू में लाया जा सकता है। कैमरा पर्सन विपिन के साथ में अरबाज अहमद, ईटीवी न्यूज के लिए जयपुर से। ईरान के इस्लामी इनकलाब के बानी आयतुल्लाह इमाम खुमैनी की कल 25वीं बरसी थी। इस सिलसिले में ईरान में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। इमाम खुमैनी को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया गया। हिंदुस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक के वफूद इमाम खुमैनी की बरसी में शिरकत के लिए ईरान में हैं और हिंदुस्तानी वक्त में ईटीवी उर्दू के दिल्ली ब्यूरो चीफ खुर्शीद रब्बानी भी शामिल हैं। बुलेटिन में इतना ही। आदाब। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया बांगड़ सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा।